ভুলে যাই জান্নাতের তালা, ভরে যাই জমিনের বালা, খুশি হয় আল্লাহ তাআলা গো। মায়ের দোয়াতে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়া সেই মাকে চিনতে পারলো না। ও মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়া সেই মাকে চিনতে পারলো না। কে মাঝে মান গিরো মায়ের করিও যত, মাকে কবু দুঃখ দিও না রে। মায়ের দোয়াতে ভুলে যাই জান্নাতের তালা, ভরে যাই জমিনার বালা, খুশি হয় আল্লাহ তাআলা গো। বন্ধুরা আমার, ও প্রাণের বাবাজিরা, সেই সময়টাকে মনে করে যেদিন আশিক হোসেনের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। ইত্তেফাকের কথা বলে যে আমি কারি সাহেবের সঙ্গে আপনাদের গ্রামে সেদিন ছিলাম। বাবাজিরা আমার, সেই সময় মায়ের মনটা কেমন করতেছিল যখন গ্রামের লোক বলেছিল, ও আশিকের মা, তোর ছেলেকে যে দুধ খাওয়াইছি, দুধ পান করাইছি, সেই দুধের ঋণটা তুমি শোধ করে দাও। জনম দুঃখিনী মা কান্দে, জনম দুঃখিনী মা কান্দিয়া কান্দিয়া দুধের ঋণ সেদিন মাফ করে দিয়েছে। নাইলে দুধের ঋণটা এমন কারদার ভাই, সারা জিন্দগি যদি মাটি কান্দে করে হজ করাইয়া না, এক ফোঁটা দুধের ঋণ শোধ হবে না। ঘুম ছেড়ে সুবহানাল্লাহ বলা যাবে না? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা ধীরে হলো, আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মায়ের দুধের ঋণ শোধ করা কঠিন, তিনি জগতের সেরা। ও গো মায়ের দুধের ঋণ শোধ করা কঠিন, তিনি জগতের সেরা। কে মায়ের সেবা করিলে, মোহব্বতে তারে দেখলে, কবুল হজের সওয়াব সে পাবে। মায়ের দোয়াতে খুলে যায় জান্নাতের তালা, ভরে যায় জমিনার বালা, খুশি হয় আল্লাহ তাআলা গো। কেউ জবান বন্ধ রাখবেন না, জান্নাত পাওয়ার আশায় জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে জোরে করে বলেন সুবহানাল্লাহ। राधरान मिल्लत इस्लामी। हम लोग जानते हैं कि ये वक्त तकरीर कर रही है क्योंकि 2 बजने जा रहा है, लेकिन जब आए आने के बाद जो रोटी खाए हैं तो उसका भी हाथ थोड़ा होना चाहिए, है ना? बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, क्योंकि हम लोग इमाम है और हर इमाम को इमामों की क्या पोजीशन है आप जानते रहे। एक इमाम साहब फरमा रहे हैं कि 1 महीने में मेरी 4 जगह बदल गई। तो मैंने कहा कि हजरत वो किस 1 महीने में 4 जगह? बोला, मैंने कहा कि आपका कसूर क्या, आपके अंदर गलती क्या है? बोला गलती क्या है तो मुझको मालूम नहीं है। पहली जगह गए, जुमा के दिन ड्यूटी ज्वाइन किए, तो हम तकरीर कर रहे हैं पर्दे के मुताबिक, पर्दे के बारे में। इमाम साहब बंगाली थे,
बांग्ला जबान में तकरीर कर रहे हैं, वहाँ काम दे रहे हैं। ओ मुसलमान भाई আমার কেউ নিজের মা বোনদেরকে বেপরদায় রাখিও না। যদি কারো বিবি, যদি কারো মা, যদি কারো বেটি, যদি কারো বোন বেপরদায় থাকে, আমার আল্লাহ সেই বান্দাকে बिना हिसाबे जहन्नम में दिए दिए। इमाम साहब कह रहे हैं कि हमारी तकरीर खत्म हो गई, जुमा की नमाज भी खत्म हो गई। वहाँ के जो सदर साहब थे उन्होंने कहा कि हजरत हमारे घर में आपकी दावत चले गए। सामने बिल्कुल देसी मुर्गी का गोश्त है और पुलाव। और वो सदर साहब क्या कह रहे हैं, मौलाना साहब আপনি যে মসজিদে তকবীর পড়লেন পুরা এলাকার মানুষ জানে যে আমার বউ অফিসে চাকরি করে, ডিউটি করে, আর আমাদের নিয়ম হিসাবে বেপরদা হয়ে যেতে হয় আর বেপরদা হয়ে আসতে হয়। তো এই কথাটা সবার পাশে মসজিদে না বললে কি আপনার পেটের ভাত হজম হয় না? इमाम साहब कह रहे हैं हजरत हमको क्या मालूम है कि आपकी बीवी कितना काम करती है, कौन क्या करता है, हम तो आज पहली बार आपको नहीं रखेंगे, आप यहाँ से जाइए। एक जगह छोड़ गए। अब दूसरी जगह हजरत कह रहे हैं कि बाप रे बाप एक पर्दा तकरीर पर्दे के बारे में तकरीर और कभी नहीं करेंगे, जगह ही हमारी छूट गई। तो दूसरी जगह गए हैं, बंगाली जबान में फिर तकरीर कर रहे हैं। और क्या करें जानते हैं, बाबा जी रायमार কেউ সুদ খায় না, যারা সুদ গোস্তাবে, যারা সুদ গোস্তাবে কিয়ামতের দিন পাহাড়ের মতন সেই লোকটার পেটটা হয়ে যাবে। আর ওই পেটের ভিতরে सांप बिच्छू घुराघुरी करবে। तकरीर तो हजरत ने कर दी, सोचे कि बहुत खुश होंगे गांव के लोग। लेकिन तकरीर के बाद जुमा की नमाज के बाद वहाँ के सदर साहब कहे हमारे घर में पाली आपकी छड़ी है। तभी इमाम साहब कहे ना जाने आज के कोनो बिल्कुल घटते। तो गए खाने के लिए बैठे और खाने के लिए कह रहे कि इमाम साहब এই সুদ ঘুষ খাওয়া এইটাই আমার বিজনেস, এই কাজটাই আমি করি। আর এইটা না করলে আপনারা বেতন কে দেন? আমি তো সারা গ্রাম বেতন উঠাই পয়সা। আর আপনি যে এই কথাটা মসজিদে এসে সবার পাশে বললেন, তা আপনার কি ডর লাগলো না? আপনার কি ভয় লাগলো না? इमाम साहब कह रहे सदर साहब हमको नहीं मालूम है कौन क्या काम करता है, तो तकरीर आपको नहीं रखेगा। आपने दो जगह छूट गई तो हफ्ते में। अब इमाम साहब कह रहे हैं कि कभी पर्दे के बारे में भी तकरीर नहीं करेंगे और कभी सूद घूस के बारे में भी तकरीर नहीं करेंगे। एक तीसरी जगह गए हैं तो वहाँ नमाज के बारे में तकरीर, नमाज में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, नमाज के बारे में तकरीर। इमाम साहब कान में हाथ लेकर टांग दे रहे हैं, मुसलमान भाई কেউ নামাজ ছাড়িও না। যারা জেনে শুনে এক সময় নামাজ ছেড়ে দেয় 2 करोड़ 88 लाख বছর পর্যন্ত সেই বান্দাকে জাহান্নামে থাকতে হবে। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, उंगली बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तकरीर करते थे उंगली हाथ तो ऐसे करना पड़ता है, लोगों की कंडीशन है। अब उधर ही सदर साहब बैठे थे, इमाम साहब ऐसे करके उंगली बढ़ाए और उधर ही सदर साहब बैठे थे। नमाज खत्म हो गई, सदर साहब कह रहे थे कि हमारे घर में खाली है। तभी इमाम साहब कहे ना जाने आज के कोनो बिल्कुल बैठ कर पड़े। तो हजरात क्या में चले गए, खाना खाने के लिए दिए हैं, कह रहे मौलाना साहब हमारा जो नमाज नहीं पूरी है तो खराब। जब बार बार तो लोग पासे वो तो लोग बस हमारे पाटे आंगुल टकले करे आपने हमारे बोल दीजिए। इमाम साहब कह रहे सदर साहब को तो मालूम नहीं है इधर बैठे थे, हमको कुछ खबर बोला मेरी तरफ उंगली बढ़ा रहे। तो आपके तरफ कंडीशन कुछ आगे से बढ़ा दिया। 3 जगह खाली हो गई, अब चौथी जगह है ना, चौथी जगह सुनिए। चौथी जगह गए तो जाने के बाद इमाम साहब कह रहे कि सुनिए ऐसा कि हम नमाज तो पढ़ा देंगे लेकिन तकरीर करने के लिए नहीं जानते, क्योंकि कौन मौजूद पे तकरीर करेगा बेचारा, जिस मौजूद पे कर रहा है उसी में फंस रहा है। तो गांव के लोग एक देहात एकदम बिल्कुल देहात दे गया था, बोला इमाम साहब तकरीर पूरे अपना बुजुर्ग करेंगे तो उनको दरकार हो गया। आपने नमाज का तो पूरा नमाज जुमा के दिन इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे और अलहम्द शरीफ के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन। ওই গ্রামে একটা লোকের নাম ছিল ইয়াসিন।
والقرآن الحكيم ইয়াসিন বাবার নাম ছিল হাকিম إنك لمن المرسلين তার দাদুর নাম ছিল মুরসাল ভাই নামাজ তো শেষ নামাজের শেষে সদর সাহেব বলছে হযরত আমার ঘরে আপনার বাড়ি তখন ইমাম সাহেবকে দেখছে বাপরে আজ কি মুসিবত ঘটবে আজ তো দুপুরে করিনি তো সদর সাহেব মাশাআল্লাহ খাতে দিয়েছে খাবার খাতে দিয়েছে আর তারপরে সদর সাহেব বলছে মাওলানা সাহেব আপনি যে ইয়াসিনের নামটা নিলেন ইয়াসিনের গ্রামের সদর সাহেব নয় সেক্রেটারি সাহেব নয় খাজানজি সাহেব আপনি ইয়াসিনের নাম নিলেন শুধু তাই না তার বাপেরও নাম নিলেন হাকিমের নাম নিলেন তার দাদার নাম নিলেন কিন্তু আমার নামটা তো নিলেন না ইমাম সাহেব বলছে আপনার নাম কি তখন ওই লোকটা বলছে আমার নাম বাবর ইমাম সাহেব বলছে বাবর নামে কোরআন শরীফে পড়েছে যদি আমার नामটা নেবেন না তাইলে আপনারা এই গ্রামে থাকা নাই तब इमाम साहब सोच रहे कि अब क्या करेंगे कुछ तो करना पड़ेगा एक हफ्ता टाइम है ये सदर साहब बोल दिए कि एक हफ्ता तक आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा अच्छा भाई कुरान शरीफ में कोई रद्द बदल कर नहीं सकता है ये भी आलिम साहब है हजरात बड़े परेशान है जुमा का दिन देखते देखते पार हो जिसको कोई काम रहता है उसका टाइम बड़ी जल्दी पार होता है हाँ जिसको कोई काम नहीं रहता उसका टाइम पार नहीं होता ठंडी के दिन में अगर किसी को नींद ना आए तो रात बहुत बड़ी लगती है और जिसको नींद आ जाए फौरन रात गुजर जाती है ऐसा होता है हज़रात इकरामी हफ्ता दिन गुजर गया जुमा के दिन इमाम साहब दुआ कर रहे हैं और अल्लाह तुम दरबार दुआ आज के जन्म बाबू जुमा पढ़ते ना से কিন্তু আল্লাহর কুদরত আধা ঘন্টা আগে সাদা সাদা কাপড় পরে ইতর গোসল লাগাইয়া বাবার মসজিদের বারান্দায় যাই বসে इमाम साहब आओ गए इमाम साहब के सामने तीन नमाजी और बैठे तीन नमाजी और बैठे बाबर जाके बोल रहा है मौलाना साहब तुम्हें जेटा जुम्मा समय आज के हमारे नाम तालिबान सेटा है आपको वैसे विरोध तो कर लेगी फिर हां तो थोड़ा सा सुनाइए उसको हमारे को सुनान चाहिए तो भाई इमाम साहब बोले या अय्युहल बाब इसको देखता इन्नका अंता हिमार व अबूका जमल व जद्दुका खिंजीर बाबर बोले चमत्कार दारुण दारुण तो तीन नमाज़ी सामने बैठे थे तारा बोल जी कि जान बाबू साहब 50 वर्ष धरे नमाज पढ़ी रकम सुरा दो और मुस्लिम अपना के सुरार मानना भूल गए तो इमाम साहब बोले नमाजी लागो माने बोलते बोलियो ना माने যদি বলি তাইলে বাবার আমার গলায় ধরবে তখন বাবারও কিছু বলেছে ইমাম সাহেব বলেন আমি কিছু করব আপনি মানেটা বলবেন ইমাম সাহেব বলেছে আমি বলেছি ইয়া আইয়ুহাল বাবুর ইন্নাকা আনতা হিমার ওরে বাবর তুই মস্ত বড় একটা গাধা ও আবু কা জামাল তোর বাপ ছিল উট ওয়া জাদ্দুকা কিনজি তোর দাদু ছিল তোর দাদু ছিল মানে এরকম কেন প্রচার করতে বাবা জিরা আমার কিন্তু মুসলিম লীগ গ্রামের থেকে ভিন্ন রয়েছে মুসলিম লীগ গ্রাম এমন একটা গ্রাম এই গ্রামের নাম যেমন মুসলিম লীগ এই গ্রামের মানুষ তেমন नहीं रात 2 परे रात 2 बजे के बाद बड़े बड़े जलसा में आदमी जाना शुरू हो जाता है जैसे इंडिया हारने से स्टेडियम खाली होता है वैसे जलसे का खाली होने लगते हैं मगर मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आप तमाम हजरात को कि 2 बजने का करीब वक्त है मगर आप सब के सब वैसे ही बैठे जिस तरह से पहले बैठे लेकिन एक मसला अपना के बोले दी हमें 3টা জায়গা কোনদিন ফাঁক রাখবেন না 3টা জায়গা ফাঁক রাখা চলে না এক নম্বরে যখন মসজিদে নামাজে দাঁড়াবেন সাফে কাতারে তখন ওই ফাঁক যেন মাঝে যেন খালি না থাকে খালি থাকলে মিস্টার ইবলিস শয়তান ঢুকে যাবে আর আপনি 3 রাকাত পড়বেন আর মনটা উঠবে না 4 রাকাত
बहकाएगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि 3 जगह को खाली नहीं रखना है। एक नंबर में मस्जिद में जब सब कायम की जाए तो वो जगह, और दूसरे नंबर में मजलिस में कभी भी, जैसे यहाँ पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है, तो इस तरह खाली मत रखिएगा। ऐसे अगर खाली रखिएगा तो इब्लीस आकर के बैठ जाएगा। वो जानता है कि जो पूरी रात में कुछ नहीं समझाए आगे बढ़ जाए उसको भी समझा करके जाएगा, है ना। इसलिए वो आकर के आपको कभी ढुलाएगा, कभी नींद में लाएगा, कभी बहकाएगा, कभी इस तरह करेगा। तो इसलिए खाली नहीं रहना चाहिए। और तीसरी जगह क्या है, वो मेरी ज़बान हया इजाज़त नहीं देती है कि लोगों के बीच में हम नहीं बता सकते। मेरा मोबाइल नंबर है 9002194232। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि तीसरी जगह कौन सी है जिस जगह को खाली रखना मना किया गया है। इसलिए मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, ज्यादा देर तकलीफ नहीं देंगे। यहाँ जो जगह आगे खाली है तो हम लोग अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बस 10 मिनट की गुफ्तगू करके हम खत्म कर देंगे। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। जोरे जोरे पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हर घड़ी आशिक हुसैन कह रहे अबर से हर घड़ी आशिक हुसैन। सुनिए, काम आएगा, काम आएगा। एक मिनट तो बार-बार सुनिए। कह रहे अबर से हर घड़ी आशिक हुसैन देखने पहुँचे रुके खैरुल वरा आशिक हुसैन कह रहे हर घड़ी आशिक हुसैन। साइकिल से अकबर जा रहे हैं। बिल्कुल मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती नहीं, मधुमक्खी की तरह नहीं, मुस्लिम भी के मुस्लिम मुसलमान भाइयों आशिक के तरह तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। कह रहे कब्र से हर घड़ी आशिक हुसैन। और आँख से यहाँ के बच्चे बच्चे करें, हर नौजवान कह रहा है, माँ बाप करे, भाई बहन करे। आँख से मकान से घर से जुदा मंजूर है। आँख से मकान से घर से जुदा मंजूर है। हो नहीं सकते कभी, हाँ हो नहीं सकते कभी दिल से जुदा आशिक हुसैन कह रहे कब्र से हर घड़ी आशिक हुसैन। हज़रत ख्वाजा पिया के चाहने वाले थे वो। हज़रत ख्वाजा पिया के चाहने वाले थे वो। कितना अच्छा
हुसैन कब्र से हर घड़िया शेख हुसैन तड़प कर दीजिए सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब मेरा अल्लाह परवरदिगार आलम हम गुलामों से बेहद प्यार करता है। रब कायनात हमें बख्शने के लिए बहाना तलाश करता है। बाबा जी रामार भाई रहमत हजरत यासर बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरबारे का बूढ़ी महिला कांते कांते किए और बोलते जो हुजूर हमारे जुआन बेटी छिलो আমার जुआन बेटीটা इंतकाल হয়ে গেছে। ও আল্লাহ वाला बंदा আমি কার চেহারাকে ভুলতে পারি না। আপনার কাছে এসেছি, আপনি একটু দোয়া করে দেন যেন আমার বিটিটাকে আমি স্বপ্নে দেখতে পাই। बांग्ला आप लोग समझ रहे हैं? जी जी ऐसा नहीं हो रहा है कि लखनऊ वाला वहाँ क्या नहीं बोल रहा है। मोहल्ला का एक आदमी लखनऊ चला गया और लखनऊ में जाकर बंगला बोल रहा है, रिक्शा में बैठा है और वो जब उसको उतरना है तो बोल रहा है कि दादा हम ये खाने नाम दो। तो रिक्शा वाला बोल रहा है कि यहाँ नींबू नहीं मिलता है, बोल रहा है कि यहाँ नींबू नहीं मिलता है। फिर ना दादा हम ये खाने नाम दो। भाई यहाँ तो खाली है, नींबू कहाँ से मिलेगा? ना ना दादा हम ये खाने नाम दो। क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने हमको हिंदी बोलना पड़ेगा, अब इसको हिंदी आता नहीं, बोल रहा क्या? अब उतरने को क्या कहा जाता है हिंदी में ये इसको मालूम नहीं। ये क्या बोल रहा जानते हैं? दादा रिक्शा को दौड़ाइए, रिक्शा को दौड़ाइए हम यहीं पर गिरेगा, रिक्शा को दौड़ाइए हम यहीं पर गिरेगा। बोल रहा गिरेगा? कैसे गिरेगा? कैसे गिरेगा? हाईवे रोड है, चलाने वाला 25 साल का ड्राइवर है, कैसे गिरा? उन्होंने गिरेगा गिरेगा हमको यहीं पर गिरा। अगला आदमी है राजू आदमी, तू रिक्शा से नीचे उतरा, डिक्की खोला, डिक्की से रस्सी निकाल, माल लोड करने के लिए रस्सी लगता है, रस्सी निकाला उसको बांध दिया और बोला अब तो नहीं गिरेगा। इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप लोग बांग्ला समझ रहे हैं? माशाल्लाह। एक आदमी हाथ उठाए, एक ही आदमी अगर समझेंगे तो सुबह सबको समझा दीजिए, सुबह सबको। बाबा जी आए हमारे একটু কারো সাথে ঘন্টাতে বলবো আর বেশি বলবো नहीं तो रात का काफी हो गया जी। और यहाँ से अगर आप लोग सो जाएंगे तो बजट नहीं पड़ पाएंगे, इसलिए यहाँ से आप सोना भी नहीं है। बस 2 बजे तक हम रहेंगे आपके बाद। आप देखिए 2 कब तक बजता है, घड़ी को देखते रहिए, मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहिए। 2 बजे हम खत्म कर देंगे। सवा दो हो गया, खत्म कर दिया जाएगा। क्या है बोलिए 2:30 बजे तक मैं हम 1:30 बजे उठे तो जल्दी पूरे 1 घंटा हो गया, शुरू भी नहीं किए, तो इतना ही मान रहे हैं। जैसे आप लोग लाठी कर सागे सलामी देते हैं, अभी सलामी ही चल रहा है और सवा दो हो गया, तो ठीक है 2:30 बजे तक सुनी है कि नहीं? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। ये जिस प्रोग्राम में रहते हैं प्रोग्राम कामयाब कर देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने तहरीर से दुआ भी देता हूँ। और माशाल्लाह अभी तो जो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं हमारे सगीर भाई हजरत मौलाना फकीर साहब, हजरत मौलाना शरीफ रवाना साहब और आपके गांव के महबूब रजा नूरी साहब, जिम्मेदारियाँ जबरदस्ती बैठे हुए हैं। और आपके माशाल्लाह हमारे हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं कारी साहब की इलावा से, और आप सब मोहब्बत करते हैं।
जब ही, वरना कितनी देर में कोई किसी का नहीं सुनेगा। और हम लोग तो लोग करे लोग को कौन सुनता है, बोलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग को कहानी को बदल दीजिए, जाइए पिंडरा जरा दाल खरीदिए, अब्दुल्ला साहब से पूछिए तब पता चलेगा अब मुर्गी से ज्यादा दाल ही महंगी हो गई है। वो कहावत बदल गई है। রাজরান মিল্লাত ইসলামিয়া আমি আরজ করতেছিলাম যে একটা বুড়ি নতুন জওয়ান বেটি মরে গেছে, তখন বেটিকে বেটাকে কি ভুলতে পারে? কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছে আর বলতে হুজুর আপনি একটু দোয়া করে দিন, স্বপ্নে দেখতে পাই। বুড়ি মানুষ আল্লাহর ওলি বললেন আমি দোয়া করে দিলাম তুমি আজকে রাতে স্বপ্নে তোমার বেটিকে দেখতে পাবে। বুড়িটা এসেছে ঘরের মধ্যে শুয়ে গেছে, স্বপ্নে দেখতেছে তার বেটিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না দেখাই ভালো ছিল, কেবল দেখতেছে রে ভাই তার বেটির শরীরটায় জাহান্নামের আগুনের কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়েছে, মাথার মধ্যে তার গলায় টুপি, ফেরেশতারা আগুনের জঞ্জির নিয়ে তার পিটতেছে। বলুন কোন ছেলেকে যদি এই গ্রামের কোন মানুষ স্কুলের মার খাইতে দেখে সহ্য করতে পারবে না, মাস্টারের বিরুদ্ধে কথা বলবে, হেডমাস্টারের কাছে শিকায়ত করবে, কোন সন্তানের বেদনা মা বাবা সহ্য করতে পারে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একটু মহব্বত দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঘুম যেন না আসে দুইটা হাত উঠাইয়া বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, তুমি আমারি মৌতের নিদানে কালে থাকিলে নবী গো আমারে শিয়রে দেখিব আপনাকে নয়নে ভরে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, সবাই বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। বুড়িটা দেখতেছে তার বেটিকে কবরে আজাব, মায়ের ঘুম হয় না, জনম দুঃখিনী মা কাঁদতে কাঁদতে সকাল করেছে। मुस्लिम ग्रामीण नौजवान भाईरा कभी इस माँ को तकलीफ मत देना। जानते हैं दोस्त, माँ अगर चली जाए दुआ करने वाला कोई नहीं होता है, बाप अगर चला जाए हौसला देने वाला कोई नहीं होता है। मत तकलीफ देना ही माँ बाप को। বুড়িটা কাঁদতে কাঁদতে সকাল করেছে, সকালে চা খাই না দৌড়ে দৌড়ে হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবারে গিয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, একটা আশ্চর্য ঘটনা, করুণ ঘটনা আপনি শুনে যাবেন। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বলতে এর চাইতে না দেখাই ভালো ছিল, আমার বেটিটাকে আমি দেখেছি, কিন্তু এমন অবস্থায় দেখেছি আমি মা হইয়া সহ্য করতে পারি না। अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी फरमा माँ किसने देखा, तो कहा इस तरह देखा। अल्लाह के उस महबूब बंदे ने फरमाया माँ ठीक है तू घर चली जा और सब्र कर, आज रात को मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बेटी किस पोजीशन में है। दुरूद पाक पढ़ पढ़ करके अल्लाह वाले नेक बंदे सो गए, अब ये खुद ख्वाब देख रहे हैं। हजरत हसन बसरी, ए मेरे चाचा जान लो, ए मेरे भाई लोग सुनिए, खुद ख्वाब देख रहे हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं कि ये खुद जन्नत में दाखिल हो गए हैं। कहिए सुभान अल्लाह, ये खुद जन्नत में दाखिल हो गए हैं, एक से एक महल। और जन्नत की कोई मिसाल तो नहीं हो सकती है मेरे भाई। जन्नत की एक ईंट की कीमत अगर इस धरती को पूरा वर्ल्ड को 10 मरतबा बेचा जाए तो जन्नत की एक ईंट की कीमत नहीं हो सकती है। मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे गुनाहों से बच जा, तौबा कर ले, मेरा खौफ मेरे हबीब की मोहब्बत लेकर के कब्र में आ जा, मैं वो जन्नत तुम्हें मुफ्त में अता करूंगा। लेकिन शर्त ये है कि खुदा का खौफ रखना पड़ेगा। सुनो अल्लाह प्यारा बंदा, चोख तकीते होए जो अंधा, मजबूत करो ना ईमान।
কেন পড়ো না কোরআন মসজিদে যাও না কেন শুনিলে আজান শোনো আল্লাহর প্যারা বান্দা থাকতে তোমারি এই জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার করো বন্দেগি আল্লাহ মানো রসুল চিনো আল্লাহ মানো রসুল চিনো হাসরে দিবে পার করায়া শোনো আল্লাহর প্যারা বান্দা চোখটা কিবে হয়েছে অন্ধা মজবুত করো না ঈমান কেন পড়ো না কোরআন মসজিদে যাও না কেন শুনিলে আজান শোনো अल्लाह प्यारा बंदा ये खुद बाप देख रहे हैं कि जन्नत में पहुंच गए हैं अल्लाह अकबर कबीरा एक से एक महल है एक रूम में घुस गए तो क्या देख रहे हैं एक सोने का पलंग है सोने का पलंग है उसके ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है हीरे जवाहरात से जड़ी हुई और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की बैठी हुई है जब लड़की को देखा तो हज़रत हसन बसरी निकलने लगे उस लड़की ने इनका दामन पकड़ लिया और बोलने लगी लड़की हुजूर अपनी क्या मन चिन हज़रत हसन बसरी बोलना ना ना अभी तो चिनी नहीं की करे चिनबो ओई लड़की टी बोलते जाओ আমি সেই পিটি আমার জন্য কালকে আমার মা কেঁদে কেঁদে আপনার দরবারে গিয়েছিল একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ हज़रत हसन बसरी फरमाते तेरी माँ तो कह रही थी कि जहन्नम में जन्नत का लिबास पहनी हुई है और रात में कौन सा चमत्कार हो गया कि कल जन्नत में क्या जन्नत कैसे बागों में है लड़की ने जो कहा था वो आप सुनना मेरे भाइयों अल्लाह का बेपनाह करम है कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया अल्लाह का बेपनाह करम है कि रब कायनात परवरदिगार आलम ने कुरान जैसी पाक किताब दी है अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कोई जरूरी नहीं कि कोई कार्य खत्म ही कर ले बस दिल से कोई और हम लोग आखिर तक रहेंगे और दिल से दुआ करेंगे एक ही आयत सही मगर आप पढ़ देना अल्लाह ताला के दरबार में अगर कबूल हो जाए तो निजात के लिए काफी किस तरह उस लड़की ने कहा था मेरी माँ बहनों आप भी सुनो क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई मर्द रोता है तो देखिएगा ऐसे करता है ऐसे करेगा देखिएगा प्रैक्टिकल करता है ये हंसी की बात नहीं लगने वाली जब भी देखिएगा मर्द रोएगा तो ऐसे करेगा लेकिन जब औरत रोएगी तो दो पट्टा को ऐसे करेगा भाई औरत रोती है तो मुंह में कपड़ा रखता है आजमा करके देखिए और मर्द रोता है तो हाथ में आंख में हाथ रखता है आखिर रीजन क्या है आखिर में हम बताएंगे रीजन क्या है एक ऐसा गुनाह है कि आदमी अगर खाना काबा का तवाफ कर रहा है उस टाइम भी करता है इल्ला माशाअल्लाह सब नहीं जो करता है एक ऐसा गुनाह है जैसा अगर अजमेर बगदाद मदीना शरीफ पहुंच जाए खाना काबा पहुंच जाए फिर भी वो गुनाह उसका होते रहता है खाना काबा का तवाफ करता है फिर भी वो गुनाह होता है एक ऐसा फर्ज अमल है कि उसको दिखा करके करना चाहिए ये तीन मसला आज हम बताएंगे और इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो वो चार मसला नाइटी पूरा जावे कि ना लिपस्टिक लगा जावे कि ना टिकली पूरा जावे कि ना शामिल पॉकेट के पैसा चोरी पूरा जावे कि ना ये सब बात लेकिन आज तीन मसला बताएंगे एक नंबर में कि जब औरत रोती है तो मुंह में कपड़ा रखता है मर्द रोता है आंख में हाथ रखता है इसकी वजह क्या है और वो कौन सा फर्ज अमल है जिसको दिखा करके करने का हुक्म दिया गया बाकी सब छुपाने का हुक्म है अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं छुपाना कोई भी नहीं कर रहे छुपाना चाहिए लेकिन एक ऐसा फर्ज अमल है उसको दिखा के करना चाहिए है ना हदीस बात के अंदर और एक बात है वो बात और तीसरी बात हम क्या बोले भाई जहन से बात भटक गई आप लोग याद लीजिए वो कौन सा गुनाह है ये कान माशाल्लाह वो बहुत सुनते भाई तकरीर इसी को कहते हैं कि आप ये सुने दिल से वो कौन सा गुनाह है कि खाना काबा का तवाफ कर रखने को गुनाह क्यों भाई जाने रहे हमार बाबा जी रहे हमार मुझे कान खड़ा कर सुने दिलेर कान लगाए सुने तारी साहब जो हमारे बोलने तो गुरुत्वपूर्ण मसला उस लड़की ने हजरत हसन बसरी से कहा
कि हुजूर मेरी माँ ने कोई गलत नहीं कहा था, मेरी माँ ने ठीक कहा था कि हम जहन्नम के अजाब में थे, हमारे जिस्म में जहन्नम के आग के कपड़ा पहना दिए गए थे। हमार माता के तार बोले तो ছিল হুজুর বড় হয়ে যাবে গ্রেফতার ছিলাম, কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে, ওই কবরস্থানের রাস্তা দিয়ে একজন আল্লাহ নেক বান্দা পার হতেছিল, তার মনের মধ্যে কি যে হলো, তিনি বললেন কবরস্থান এটা এমন জায়গা যে জায়গাটা সবকে একদিন আসা লাগবে। ভাইরা আমার, যদি আমরা কবরকে ভুলে যাই, কবর আমাদেরকে ভুলবে না। প্রতিদিন কবরটা ডাক দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বলছে কবরে আমার কবর বান্দারে তুই শুনলি না, বলছে কবরে আমার কবর বান্দারে তুই শুনলি না, দিন দিন তোর কাটছে হায়াত একটিবারও ভুললি না। अरे बर्थडे ही मना रहा है। अरे बारे 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 देखे हुआ मैं सही चौके पे चिल्ली ना। अरे तो नहीं फरमाया कि क्या हाल क्या है, जहाँ पर मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर बोलेगा। मस्जिद जाएगा, बच्चे बैठे हुए, रे किधर है, अरे हल्ला करो किधर, मैं किधर जितना हल्ला करा उससे ज्यादा तो आप कर रहे हैं। किधर तो हल्ला कर ही रहा था, आप जाकर के डबल हल्ला कर, फिर जाएगा। अरे यहाँ आगे जगह खाली वहाँ बैठ गए, इतना जोर जोर से ध्यान की बातें करें हमारे वहाँ, और फिर जब जुमा की तकरीर शुरू हो जाएगी, दीवार पे टेक लगा के खड़ा, वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर बोले, कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए, वहाँ जाकर के बोलेंगे लोग, और महफिल में बोलना चाहिए। अजब अलमिया, इसलिए कब्र कहती है, क्या कहती है, जब किसी गुनहगार बंदा को कब्र के करीब रखा जाता है तो कब्र कहती है, क्या कहती है, आज के तारा কোথায় যাদের ভেবেছিলি আপনজন, যাদের মায়ায় ভুলে আমায় কাটালি দুনিয়ার জীবন, আর কোথায় রে তোরে আংটি বালায় আজ কেন তোর হাত খালি, শোকের ঘড়ি সোনার তড়ি আজ তারে দিয়ে এলি, তো পথের সাথে মোটর বাইক সঙ্গে তো কই আনলি না, পথের সাথে মোটর বাইক সঙ্গে তো কই আনলি না, দিন দিন তোর কাটছে হায়াত একটিবারও ভুললি না, বলছে কবরে আমার কবর বান্দারে তুই শুনলি না, দিন দিন তোর কাটছে হায়াত একটিবারও ভুললি না। যখন ওই গুনেহগার বান্দাকে কবরের ভিতরে রাখা হয়, একটি লাইন যদি কেটে যায় তো রুমের ভিতরে ঘুম হয়ে যায়, এই জন্য সবার কি বেটা লিখেছে, যখন কবর ভিতরে বান্দাকে রাখা হয়, ওটা যদি গুনেহগার হয় তো কবর বলে কি বলে জানেন, উপর নিচে আগে পিছে শুধুই যে মাটি মাটি, নাই রে তা কাটবো দিয়ার, নাই রে পাখা নাই বাতি, নাই জানালা নাই দরওয়াজা, দেখবি শুধু আন্ধেরা, নাই রে টিভি নাই রে বিবি, নাই রে साथेर बंधुरा। बीवी इतनी मोहब्बत करती है मगर जब रोज जुदा हो जाए कोई नहीं, सब बेगाने हो जाते, নাই রে টিভি নাই রে বিবি নাই রে साथेर बंधुरा, तो টেলিফোনের তারটি কেন এই ঘরেতে টানলি না, টেলিফোনের তারটি কেন এই ঘরেতে টানলি না, ঘরটি কেমন পাবি রে তুই বলতে কারো পারবি না, বলছে কবরে আমার কবর বান্দারে তুই শুনলি না, দিন দিন তোর কাটছে হায়াত একটিবারও ভুললি না, জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবাজিরা আমার, বন্ধুরা আমার, যা ঘটনাটা বলতে বলতে মাঝে কথাটা এসে গেছে, জন্য বাড়াই নাম ডাক করবেন, सब बोल रहे हैं खत्म करेंगे खत्म हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आखिरी पोजीशन पे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है जब आंखों में नींद का खुमार हो, इंसान को बोलिएगा कुछ सुनेगा कुछ। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, कभी सो रहा है कभी जाग रहा है, कभी सो रहा है कभी जाग रहा है, तो ट्रेन में देखिएगा, आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं, आप लोग देखे होंगे कभी समोसा वाला आ रहा, कभी आलू चौक वाला आ रहा, कभी बादाम भजा वाला आ रहा, एक आदमी और सब्जी लेके उठा है, और उठने के बाद बोल रहा तरकारी पूरी लीजिए भाई, तरकारी पूरी
था, सो रहा था, जाग रहा था, इसको सुनाई दिया सरकारी पूरी लीजिए भाई, सरकारी पूरी। ये उठा, उठने के बाद बोला बहुत अच्छी बात है, लाइए मेरे पास। 1 2 3 4 17 पूरी खा गया, 17 पूरी खा गया। अब वो बैठा हुआ खड़ा है तो बोल रहा कि जाइए, हो गया। बोला बिल दीजिए, बिल पे कीजिए। बोला बिल सरकारी पूरी में क्या बिल? बोला कौन बोला सरकारी पूरी? तुम्हारा भेजा खराब है। तो अभी तो बोले सरकारी पूरी लीजिए भाई, सरकारी पूरी। बोला गधा कहकर हम सरकारी पूरी नहीं बोले, सरकारी पूरी बोले। तो हज़रात किराम वहाँ से शामिल हाजिरीन, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम बीच बीच में कभी कभी एंटीबायोटिक देते हैं ताकि दवा सही तरह से असर करे। तो हम बस से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लड़की ने हजरत हसन बसरी से कहा कि हुजूर मेरी माँ ने सही कहा था, हम अज़ाब में गिरफ्तार थे, मगर अल्लाह के नेक बंदे उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ ये कब्रिस्तान है, फातिहा पढ़ के जाना चाहिए। वो कब्रिस्तान के अंदर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल सूरा को पढ़ा। पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाया, अर्ज़ किया मौला मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है, इसका सवाब इस कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को पहुंचा दे। वो लड़की कहती है हुजूर उस अल्लाह के नेक बंदे ने सूरह फातिहा पढ़ करके पूरे कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। सूरह फातिहा की बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुझे ही नहीं उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सबको ऐसे ही जन्नत अता फरमा दिया है, सबको ऐसे ही जन्नत अता फरमा दिया है। मुस्लिम लीग ग्राम के मेरे भाइयों, मुस्लिम लीग बस्ती में आने वाले मेहमान भाइयों, आलम रजा का ये पैगाम लेते जाइए, अगर एक आदमी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ कर के बख्श दे, अल्लाह ताला सारी कब्रिस्तान के मुर्दों को जन्नत अता फरमा दे सकता है। बाबू आसिफ हुसैन के लिए सिर्फ सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ा गया है, बल्कि सूरह बकरा भी पढ़ा गया है, सूरह निसा भी पढ़ा गया है, सूरह आले इमरान भी पढ़ा गया है, सूरह हुजरात भी पढ़ा गया है, सूरह अहज़ाब भी पढ़ा गया है। कुरान शरीफ के 114 सूरतों की तिलावत की गई है। मेरा दिल कह रहा है, मेरा ईमान कह रहा है, अल्लाह ताला कुरान की बरकत से, साहिब कुरान की बरकत से बाबू आसिफ हुसैन की कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दे। बस में रहमत में जब उनकी बात होती है, बस में रहमत में जब उनकी बात होती है, बस में रहमत में जब उनकी बात होती है, तो रिमझिम रहमत की बरसात होती है, रिमझिम रहमत की बरसात होती है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मौत से डरना नहीं है, मौत से घबराना नहीं है। अल मौत तौबतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत तौबा है। क्यों? कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, कितनी प्यारी कब्र की, कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है। पहली आका से मुलाकात होती है, पहली आका से मुलाकात होती है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह।
हजरात दिगर हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से ये हमसे मोहब्बत करते हैं हम भी उसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि कारी साहब की 5-10 मिनट गुफ्तगू हो जाए। आप लोग सुनिएगा, तो सुनना चाहिए। देखिए नींद आती है, कब नींद आती जानते हैं? 11 बजे नींद आती है, 11 से 12 तक वो नींद रहती है और उसके बाद नींद खुल जाती है। 5-10 मिनट की दुआ या जुमला कह के सुनिएगा। वो 3 मसला को हम दिल रखते हैं, धार रखते हैं, कभी आएंगे तो पूरा कर देंगे। बल्कि कारी साहब आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं, आइए इनका इस्तकबाल कीजिए और आशिक की तरह नारा लगाइए, नारे तकबीर। ये आशिक की तरह नहीं हुआ, आशिक की तरह होना चाहिए, नारे तकबीर। ये बड़े बेटे चारों जो है कैसे, नारे रिसालत, मुस्लिम दीन के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चिरागे सामने बचा कर रखिए, कभी और रात होगी, हम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, कभी किसी मोड़ पर और मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।